اپنی خوشی کا ہم اپنے خداوند کو جلال دینے کے لیے ہم اپنی خوشی کا اپنی شادمانی کا ہم اظہار کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ خداوند خدا باپ بیٹا اور روح القدس یہاں پر گو کے پہلے ہی موجود ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ جو اس نے یہ بھی کہا کہ جہاں دو جتنے میرے نام میں اکٹھے ہوں گے تو میں وہاں پر موجود ہوں گا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں جو اس نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو سو ہم خداوند کے شکر گزار ہے کہ وہ ہم سے آج کہتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے سو آئے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس تصبور میں کہتا ہے کہ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے خوشی کے ساتھ شادمانی کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ ہم اس کی حضوری میں حاضر ہوں گے اور اپنی سوچوں کو خیالوں کو پیچھے کرتے ہوئے ہم اس کو آگے کریں گے اور خداوند کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں اکٹھا کیا ہے تاکہ ہم اس کے پاس آئیں اور اس کی بات کو اس کی آواز کو ہم سن سکیں اور خاص طور پر ہم سسٹر شاہین کے لیے ان کی فیملی کے لیے ہم شکر گزار ہیں ان کی ساری محنت کے لیے ان کے سارے پیار محبت کے لیے ان کی ساری کاوش کے لیے اور ان کے سارے اس پلان کے لیے جو خداوند نے ان کو دیا ہے اور اس سارے رویا کے لیے ساری ویژن کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کریں گے اور چاہیں گے کہ خداوند کا گہرا ہاتھ خداوند کی گہری جو انائنٹنگ ہے اور خداوند کا جو ہاتھ ہے وہ ان کا ہمیشہ بڑا رہے سو ہم خداوند کا شکر ادا کریں گے اور خداوند سے چاہیں گے کہ خداوند اس فیملی کو اس پوری فیملی کو بڑے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور اپنے نام کو جلال دینے کے لیے ان کی زندگی میں گہرا اور جلالی کام کرے یس مائی لارڈ ہیلیلویا اور موسیٰ کی طرح ان پر اپنے چہرے کا نور پوری فیملی پر چمکائے اور یہ یوزفل ویسل بنتے چلے جائیں یسوع کے نام سے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس لمحہ اس کے پاکرو کے لیے کہ وہ یہاں پر موجود ہے جس کے بارے میں یسوع نے کہا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا یا کہ جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا یعنی روح حق سو آئے ہم خداوند کے پاک روح کو یہاں پر ویلکم کرتے ہیں اس کی حضوری کو یہاں پر ویلکم کرتے ہیں اور کلام پیش کرنے والی زندگی کے لیے ہم برکت اور سلامتی چاہتے ہیں جو زندگیاں یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے ہم برکت اور سلامتی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداوند اپنے کلام کی جو روشنی ہے اپنے کلام کی جو بارش ہے آج ہماری زندگی میں انڈیلے اور اپنے اور اس خون کی قدرت کو ہماری زندگیوں میں آنے دے تاکہ ہمیں زندگی کے جن جن ایریا میں ہمیں اس کے بلڈ کی ضرورت ہے ہم ان ایریا میں اس کے بلڈ کی قدرت کو اپنی زندگی میں دیکھیں خواہ وہ روحانی ہے خواہ وہ جسمانی ہے خواہ وہ ایجوکیشنی ہے خواہ وہ فائنینشلی ہے ہم یسوع کے نام سے اس کی برکت اور سلامتی چاہیں گے ہم یسوع کے نام سے اس کے کلام کی قدرت کو چاہیں گے ہم یسوع کے نام سے اس کی لہو کی قدرت کو مانگتے ہیں ان دا نیم آف یسوع کے نام سے اور سارے بندن سارے جوے یسوع کے نام سے کھلتے جائیں اور دشمن شکست کھاتا چلا جائے یسوع ناصری کے نام سے باپ اسلام میں باپ ہم ہر طرح کی ڈسٹربنگ کو ہر طرح کی پرابلم کو ہم یسوع کے نام سے بائنڈ کرتے ہیں ان دا نیم آف یسوع کے نام سے باپ یس مائی لارڈ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور ساتھ جلال وقت ہم تیرے یسوع نام کو دیتے ہیں یس مائی لارڈ آج ہمارے ذہنوں کو سوچوں کو خیالوں کو اب آپ اپنے کنٹرول میں لے اور خداوند اپنے بڑی قدرت کے وسیلہ سے اپنے بڑے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے تو آج ہمیں تیار کر اور ہمیں اب آپ ہماری زمینوں کو نرما دے اب آپ ہماری زمین دل کی زمین پر تو اب آپ آج اب آپ اپنے لہو کا حل چلا دے اب آپ اپنے کلام کا حل چلا دے یسوع کے نام سے باپ ہلیلویا تاکہ ہماری زندگیاں اب آپ زرخیز ہو جائیں باپ زرخیز زمین بن جائے باپ جس سے بہت سا پھل پیدا ہو جائے جس سے بہت سی زندگیاں بچ جائیں جس سے ہمارے گھرانے ہمارے بچے اب آپ تھوڑا تازہ ہو جائے یسوع کے نام سے باپ یس مائی لارڈ ہلیلویا اور بیری بیری زی بی زری رشن دبول اور زیری یسوع ناصری کے نام سے باپ آج داؤں تیرے لہو کی قدرت ہے باپ ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر اب کام کرے اور ہم سب برکت پائیں یس مائی لارڈ جس ایریا میں ہمیں تیرے لہو کی ضرورت ہے داؤں تو آج ہم سے بول اور کلام کر اپنی بندی کو لے اور پاکوں کا مسا دے کر اور داؤں اپنے کلام کے صلہ سے داؤں تو اپنی بچی کو لے اور استعمال کر ابھی سے اب آپ ہم اس کو تیرے بیٹے یسوع کی لہو میں چھپا دیتے ہیں تیرے داؤں تیرے تسلط میں
पाक रूह के होल्ड में अब हम दीदी को दे देते हैं। खुदावन उसकी रूह बदल जान को, खुदावन उसकी जुबान को, उसके दिल को, खुदावन सोचो ख्यालों को खुदावन अब आप तेरे हाथ में दे देते हैं। खुदावन वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह अब आप उसमें से होकर बोले, जिसके बारे में तूने खुद कहा है कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा जो तुम्हें आने वाले जमाने की बातें बताएगा। खुदावन वही अब आप आज पाक रूह खुदावन एक दफा फिर अब आप खुदावन तेरी बंदी में से होकर हमसे कलाम करें और हमारी जिंदगियों से और हमारी जिंदगियां ताजा हो। यीशु तेरा शुक्र अदा करते हैं, ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह नासी के नाम से, आमीन आमीन। हेलो Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. इसी तरह हम वर्शिप करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारा और समर में वर्शिप में लीड करें। नीचे क्या
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord जी। जय Praise the Lord. Praise the Lord. मसीह। God bless you. सुसी ने कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस। आए हम उसी के नाम को जलाल देने के लिए आगे सिस्टर अंजना से कहते हैं कि वो आए और हमें वर्शिप में लीड करें। हाँ जी, praise the Lord. अंजना Praise थोड़ा the Lord. बिजी है, मैं उन्हें जगह में करूँगी। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, oh हालेलुया, हालेलुया, oh हालेलुया, हालेलुया। मेरी जे जिंदगी और मेरी अकल, मेरी जे ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी जे जिंदगी और मेरी अकल, मेरी जे ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हाँ हालेलुया, ओ हालेलुया, हाँ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी दुनिया मानेगी तुझको पाक खुदा। बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी दुनिया मानेगी तुझको पाक खुदा। बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हाँ हालेलुया, ओ हालेलुया, हाँ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा तू है मेरा खुदा। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा तू है मेरा खुदा। शुक्र गुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, शुक्र गुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हाँ हालेलुया, ओ हालेलुया, हाँ हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Sister Sonia. God bless you. खुदा आपको बरकत दे और इसी तरह आप उसमें मसरूर रहें ताकि वो आपके दिल की मुरादों को पूरा करे। तो हम आपके लिए दुआ गो हैं, खुदा आपकी फैमिली को और अपने बच्चों को बड़ी बरकत दे और अपने नाम के जलाल के लिए
आपको बड़े बड़े जोर से इस्तेमाल करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम सिस्टर महेंद्र से कहते हैं कि वो आए और आगे हमें वर्शिप में लीड करें, और इसके बाद हम सनिया के साथ, सिस्टर के बाद हम सनिया के साथ वर्शिप में शामिल होंगे। सिस्टर महेंद्र जी, जय जी मसीह की। सिस्टर, जय मसीह। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ। ਗੱਡੀ ਚਲੀਏ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਚਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਾਮ ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲੀਏ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲੀਏ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ, ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਚਲੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ, ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖते हो, मेरे ਤੇ ईमान रखो। कहता कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। सो मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। आज वो हमारे लिए उसने आसमान पर जो जगह है उसने रखी है हमारे लिए। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। दुनिया के पास कोई उम्मीद नहीं है, दुनिया के पास कोई अब्दी जिंदगी का कोई ईमान नहीं है, कोई फेथ नहीं है, लेकिन क्रिश्चियनिटी के पास हम यीशु मसीह में ये ईमान रखते हैं, ये बिलीव रखते हैं, ये यकीन रखते हैं कि हमारी एक जगह, हमारी जो आसमान पर उसने हमें अपने साथ उसने तख्त पर बिठाया है। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने हमारे लिए जगह रखी है आसमान पर, हम उसका शुक्र अदा करते हैं इस फेथ के लिए, इस ईमान के लिए कि हम जब यहाँ से जाएंगे तो हम मुंतकिल होंगे, हम एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट होंगे और जलाल में होंगे, उसकी बड़ी कुदरत में होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम सिस्टर महेंद्र के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावन अपने बच्ची को ले और इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। सिस्टर महेंद्र जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਗਲੋਰੀ टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करने हैं। इसी तरह हम वर्शिप में सनिया विक्रम कह रही है कि मैंने भी वर्शिप करनी है। सो सनिया अगर रेडी है तो काइंडली वो वर्शिप में हमें आगे लीड करे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। रूहे पाक दा यसु मैनू जोर दे, बंदी सारियां गुनाहां वाले तोड़ दे। रूहे पाक दा यसु मैनू जोर दे, बंदी सारियां गुनाहां वाले तोड़ दे। मैनू जोर दे, मैनू जोर दे, मैनू जोर दे, मैनू जोर दे। Amen. Yes, Lord.
ਜ਼ੋਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। मूसा वाला मसा पाके लोकां नू बचावा मैं, तेरा एक कलाम यसु सब नू सुनावा मैं, तेरा एक कलाम यसु सब नू सुनावा मैं, सब नू सुनावा मैं। टूटा रिश्ता लहू दे नाल जोड़ दे, बंदी सारे गुनाहां वाले तोड़ दे। टूटा रिश्ता लहू दे नाल जोड़ दे, बंदी सारे गुनाहां वाले तोड़ दे। मैनू जोर दे, मैनू जोर दे, मैनू जोर दे, मैनू जोर दे। यसु मेरी सिपरते, यसु मेरी ढाले, मुसीदा नी खौफ मैनू यसु मेरे नाले, मुसीदा नी खौफ मैनू यसु मेरे नाले, यसु मेरे नाले। टूटा रिश्ता यहूदी नाल जोड़ दे, बंदे सारे गुनाहां वाले तोड़ दे। मैनू जोर दे, मैनू जोर दे, मैनू जोर दे, मैनू जोर दे। रूहे पाक दा यसु मैनू जोर दे, बंदे सारे गुनाहां वाले तोड़ दे। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद सबकी जिंदगी में पाक रूह का मसाज जारी करे और खुदावंद के लहू से हम लोग सब निजात पाए। आमीन। Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Sania. God bless you. खुदावन आपको बरकत दे और अपनी फैमिली के लिए और आपके घराने के लिए हम दुआ को हैं कि खुदावन आपकी फैमिली को और आपके वसीला से नदीम के वसीला से और भी जो आपके सारे पूरी फैमिली को अपने पास लाने का वसीला बनाए और यूजफुल वेसल बनाए, पाक वेसल बनाए। हम खुदावन से दुआ करते हैं खुदावन आपको ले और कसरत से इस्तेमाल करें और आप इसी तरह उसके प्यार उसकी मोहब्बत का मजा जो है वो प्रैक्टिकली चखती चली जाए। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. इसी तरह हम श्रेया मेरा हाल आपका म्यूट हो गया। हेलो हेलो मैं सिस्टर हाँ शाहीन जी। से रिक्वेस्ट करती हूँ। हाँ जी, सिस्टर शाहीन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो आए और आगे हमें लीड करें। कलाम के लिए दुआ करें कि आज जो कलाम किया जाए खुदावन अपनी बंदी को बरकत दे और हमारे लिए वैसे बरकत दे। हम सिस्टर शाहीन से कहते हैं कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू श्रेया। प्रेज द खुदावन का शुक्र हो सारी प्रस्तिश के लिए और श्रेया के लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन अपनी बंदी को इसी तरह अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे और खुदावन का मसा खुदावन की हसूरी इसके ऊपर ठहरी रहे और ये खुदावन के नाम को ऊंचा करती रही अपने दुआओं से, अपने किरदार से, अपने अमाल से हमेशा खुदावन के नाम को जलाल देती रहे और इसके अंदर से पानी की नदियां जारी होती रहें और खुदावन अपना गहरा मसा गहरी हसूरी सुरैया के ऊपर ठहरी रहे और ये अपने फैमिली के लिए हमारे लिए बाइस बरकत बनती रहे। आमीन। हम दीदी को खुदावन यीशु के खून में छुपाते हैं। खुदावन दीदी को खुदावन सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदावन यीशु मैं तेरे खून में छुपाती हूँ। तेरा गहरा मसा तेरी गहरी हुजूरी तेरी बेटी के ऊपर छाई रहे। खुदावन आज तो सहून से कलाम करना। खुदावन अपनी बेटी के जुबान को मसा कर खुदावन, खुदा उसके मुंह को मसा कर खुदावन, जो कुछ भी वो बोले खुदावन तेरी तरफ से हो। खुदावन वो हमारे लिए बाइस से बरकत साबित हो। खुदावन खुदा आज का कलाम हमारी जिंदगियों में खुदावन जो आए जो तू बोले खुदावन खुदा उससे हमारे बंधन टूटे, हमारे जुए टूटे और खुदावन यीशु तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इस ग्रुप में ऊंचा होता रहे। खुदावन अब आप खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ सारी मीटिंग के लिए। खुदावन खुदा शुरू से आखिर तक खुदावन मैं इस मीटिंग को तेरे हाथों में दे देती हूँ। खुदावन दीदी को खुदावन खास अपना
मसा दे खुदावन, ताकि तेरी बेटी खुदावन जो कुछ बोले खुदा उसके वसीला से खुदावन हमारी जिंदगियां तब्दील हों। अब आप खुदावन पूरे ग्रुप को खुदावन यीशु तेरे हाथों में दे देती हूँ। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। आमीन। हमारे साथ दीदी हैं जो समरीन आज हमारे साथ बात करेंगी खुदा यीशु मसीह के खून के ऊपर। और मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि निदा है, अंजना है, माया है और सोनिया, सराफीन, कोई भी आप में से सनिया या वफा, शीना, आप में से कोई भी खुदा यीशु मसीह के खून पे कोई बात करना चाहता है तो ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि इन दिनों हम बात कर रहे थे खुदा यीशु मसीह के खून पे। तो मैं चाह रही थी कोई भी अगर तैयार है, चाहे छोटा हो, 10 मिनट का हो जाए, तो आप बताएं ताकि हम सभी कुछ ना कुछ हिस्सा लें। और मैं एक और बात जो कह लें, आज खुदा ने ख़ास एक या रात को जब मैं प्रेयर करी थी, तो जब भी आपसे इस तरह कहा जाए तो ज़रूर अपने आप को पेश किया करें। इससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा, इस ग्रुप को फ़ायदा होगा, बल्कि आपकी फैमिली को भी। क्योंकि जो कोई बोल रहा होता है, फ़र्ज़ करें कोई गीत गाता है या दुआ करता है, या ये जैसे मैं मैसेज कह रही हूँ कि छोटा-सा हो जाए दें, आप इस चीज़ को महसूस करना कि जब आप इस तरह खुदावंद के लिए अपने आप को पेश करते हैं, तो आपके बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं। आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर उस वक़्त एक ख़ास खुदा का मसा जो है वो ठहरता है। इसीलिए मैं सबको कोशिश करती हूँ, शुरू से ही आपको पता है कि मेरे जैसे कह लें खुदा ने भेजा ही इसलिए है, आपके दरमियान के जो कमज़ोर हैं अ, उनको मजबूत करने के लिए, उनको ज़ोर देने के लिए, हौसला देने के लिए, मजबूत करने के लिए खुदावंद ने मुझे ये ग्रुप शुरू करने के लिए कहा है। तो इसलिए ज़रूर आप हिस्सा लें। और क्योंकि जब से मैंने ये शुरू किया मेरे बंधन टूटना शुरू हो गए। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी जो अभी तैयार नहीं अपने आप को समझते, जब आप मुँह खोलेंगे तो खुदावंद आपको जो कलाम है उससे भर देगा। तो मसा आपके ऊपर ठहर जाएगा, है ना? तो इसलिए ज़रूर अ, ये मीटिंग के बाद मेरे से बात करें या मुझे मैसेज कर दें कि हाँ जी मैं दूँगी, तो ज़रूर आप हिस्सा लें, ठीक है? तो गॉड ब्लेस यू। दीदी को हम वेलकम करते हैं कि खुदावंद का कलाम हमारे साथ जो भी खुदावंद ने उसके दिल में डाले हमारे साथ शेयर करे। गॉड ब्लेस यू दीदी। जी दीदी। God bless you too and praise the Lord सबको। आज वैसे हम पिछले दिनों से यीशु के लहू के बारे में सीख रहे हैं और मामी ने हमें पिछले दिनों में सिखाया है कि 7 जगहों पे 7 प्लेसेस 7 जगहों पे जहाँ पे यीशु का लहू बहाया गया, उन सब का क्या मतलब था, ये बहुत अच्छे तरीके से हमने सीखा है। तो जो मुझे खुदावंद ने मेरे दिल में जो ये टीचिंग जिससे मुझे बरकत मिली वो भी यही है, लेकिन मैं 4 बेसिक जो है जगहों पर बात करना चाहूंगी। और जो मेरा बोझ हमेशा होता है, बल्कि हम सबका ही होता है कि हमें और हमारे ग्रुप के हर मेंबर को दुआ करनी आनी चाहिए। हमने अभी पिछले दिनों में जो टीचिंग में सब कुछ सीखा है, असल में अब हमने जो मेरा आज फोकस है वो ये रहेगा कि हम उन सब चीजों को कैसे, यीशु के लहू को अपनी दुआओं में कैसे मांगना है और किस तरह से अपने बंधनों पर, अपने दुश्मनों पर हमने गालिब आना है। तो आप सबने इसको गौर से सुनना है और मेरा ईमान है कि हम सब बरकत पाएंगे। हालेलुया। जैसे कि तमाम अनाजील में हम देखते हैं, इस सब में जिक्र है कि यीशु ने अपने शागिर्दों को रोटी दी और तोड़ी और कहा कि लो ये खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाएगा। लेकिन जो मत्ती की अंजील है वो इस बात को जो है, मत्ती की किताब जो लिखने वाला है उसमें वो ये इस बात को बयान करता है कि ये प्याला, उसमें ये लिखता है कि ये मेरा बदन है। वो इस बात को वाज़िया तौर पे कहता है कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे गुनाहों के माफी के लिए बहाया जाएगा। और ये प्याला लिया और कहा
کہ یہ میرا خون ہے جو تمہارے گناہوں کے واسطے بہایا جاتا ہے. اور لوکا کی انجیل جو ہے اس کی 22 باب اور اس کی 19ویں آیت کوئی اگر پڑھ دے یا میں خود پڑھوں. اگر ہم لوکا کی انجیل دیکھیں, اگر آپ متی کی بھی دیکھنا چاہے, سب اناجیل میں جو ہے اس بات کا ذکر کیا جو آخری آخری کھانا جو یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا, اس میں اس نے ان سے کیا بات کی, جو ہم جس کو ہم پاک شراکت کہتے ہیں, شرابانی کہتے ہیں, جو ہم مہینے کی پہلے ویک میں پہلے سنڈے میں جو ہے ہم لوگ اپنے چرچز میں اس یادگاری کو ہم مناتے ہیں. تو اس میں جو ہے یسوع نے, میں لوکا کی انجیل پڑھتی ہوں, لوکا کی انجیل اس کا 22 باب اس کی 19ویں آیت, اس میں لوکا یہ کہتا ہے کہ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کر توڑی اور یہ کہا کہ یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے, میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. ہاللیلویا. اس نے کہا میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. آگے ہے, اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. یعنی کہ لوکا کی انجیل میں بھی یہ واضح طور پہ بیان ہو رہا ہے کہ یسوع نے ان کو کہا ہے کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے. اس نے اپنا بدن, وہ بائبل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس نے انہیں بتایا تھا کہ میں اپنا بدن جو ہے وہ اس نے ہمارے لیے دیا ہے اور اس کا خون ہمارے لیے بہایا گیا ہے, ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا. تو تمام اناجیلیں یہ بتائی, لیکن لوکا نے اس کو جو ہے یہ اور زیادہ کلیئرلی کیا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے جب کہ یسوع نے ہمیں یہ بھی کہا ہے, اس بات سے ہم اس کو یہ بھی اس طرح سے بھی سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں کہا ہے کہ جب بھی تمہیں میری یاد آئے, اس نے کہا نا میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو, کہ جب بھی تمہیں میری یاد آئے میرے لہو کو پیو, اس کو اپنے اوپر لگاؤ تاکہ تم برکت پاؤ. اس بات کا یہ مطلب ہے کہ اس نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ تمہیں جب بھی میری ضرورت ہو, جب بھی میرے لہو کی میری ضرورت ہو, تمہیں میری یاد آئے تو میرے لہو کو پیو, اس سے نہاؤ, اس سے اپنے آپ کو دھو, اس کو اپنے اوپر لگاؤ تاکہ تم برکت پاؤ. کیونکہ جب بھی ہم خون کی, لہو کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس کے لہو میں قدرت ہے. تو ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ اس کے لہو میں قدرت ہے؟ کیونکہ یسوع میں قدرت ہے. ہاللیلویا. اس کے لہو میں قدرت اس لیے کیونکہ یسوع میں قدرت ہے, یسوع میں زندگی ہے. اور جب بھی ہم ایمان سے یسوع کے خون کو, یسوع کے لہو کو مانگتے ہیں, اپنے اوپر لگاتے ہیں, تو ہماری زندگی میں خدا کی قدرت کام کرنے لگتی ہے. پریز دی لارڈ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند کی قدرت جو ہے ہماری زندگی میں کام کرے, خداوند جو یسوع کا خون ہماری زندگی میں نئے کام ہو, تو ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم یسوع کے خون کو ایمان سے اپنی زندگی میں مانگیں. ہاللیلویا. اور یسوع کے خون کے پاس, یسوع کے خون میں زندگی ہے, اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کی جان جو ہے وہ اس کے خون میں ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان کی جان اس کے خون میں ہے. تو جب ہم اپنی زندگی میں, اپنے بدن میں یسوع کے خون کو مانگتے ہیں, تو کس طرح سے اس کا لہو ہمارے موت کے سفر کو زندگی میں بدل سکتا ہے, کیونکہ اس کا لہو تو زندگی والا ہے, اس کا لہو قدرت والا ہے. ہاللیلویا. اب آج ہم سیکھیں گے کہ وہ 4 بیسک جگہ, ویسے ہم نے پچھلی ٹیچنگ میں سیکھا ہے کہ 7 پلیسز کہاں کہاں یسوع کا لہو بہایا گیا, اس کا کیا مطلب تھا, پر ہم آج یہ بھی سیکھیں گے کہ آج ہم 4 بیسک جگہوں پہ بات کریں گے, اور یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم نے کیسے اس کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ ہم ان مقامات پر, ان جگہوں پر رہائی پائیں, ہمارے بچے رہائی پائیں, ہمارے خاندان آزاد ہوں. تو یسوع کا لہو جو پہلی بار بہایا گیا گتسمنی باغ میں بہایا گیا تھا, یہ ہم سب جانتے ہیں.
तो गतसमनी बाग में यीशु का लहू बहाया गया, उसका जिक्र लूका 22 बाब उसकी 44 वर्स में है। कोई बाइबल रीडिंग करना चाहेगा? हाँ जी सिस्टर जी, लूका 22 22 बाब है, उसकी 44 वर्स है। ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੜਾ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। सिस्टर जी आगे भी पढ़ना? नहीं बस 24 उसकी 44, हाँ जी बस 41 एक ही वर्स पढ़नी थी। मैं उर्दू में पढ़ दूं अब। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और अपनी दिलसोजी से और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। आमीन। हम इस आयत में देखते हैं कि गतसमनी बाग में यीशु जब दुआ कर रहा था तो वो नहायत ही दुखी था, परेशान था, और वो दुआ कर रहा था, और उसका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर बूंदें होकर जमीन पर टपकता था, कि उसका वो जो पसीना जो उसका खून था वो जमीन के अंदर मिल रहा था। वो पहली जगह थी जब यीशु का लहू उस गतसमनी बाग की मिट्टी में मिल रहा था। और यीशु का जो लहू जो उस वक्त जो टपकना शुरू हुआ था, असल में यीशु इस वजह से परेशान नहीं था कि वो हमारे लिए कुर्बान नहीं होना चाहता था। उसने तो खुदावंद कहा था कि मेरी नहीं बल्कि ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। ऐसा ही ये बात हम सब जानते हैं ना। लेकिन जो उसका पसीना खून बनकर टपकने लग गया था, असल में ये अबलीस का मंसूबा था कि यीशु का लहू जो है वो सारा गतसमनी बाग में ही बह जाए, यहीं पे सारा निकल जाए और उसकी मौत यहीं वाकया हो जाए, क्योंकि अबलीस जो है वो जानता था कि अब सलीब जो है वो उसकी शिकस्त है, वो उसकी शिकस्त का रास्ता है। वो यीशु को उस रास्ते तक जाने देना नहीं चाहता था। अबलीस उसमें रुकावटें डाल रहा था। वो अबलीस को पता था कि जो सलीब है वो उसकी शिकस्त है, तो इसलिए वो चाहता था, उसका ये इरादा था कि यीशु का सारा लहू उसके बदन में से इस गतसमनी बाग में ही निकल जाए, यहीं पे यीशु की मौत वाकया हो जाए और वो सलीब तक ना पहुंच सके। पर बाइबल ये बताती है कि खुदावन के इरादे पूरे होते हैं, अबलीस के नहीं। जो खुदा का मंसूबा था वो पूरा होना था, जिसके लिए यीशु जमीन पर आया था। हालेलुया। अब आगे हम देखेंगे, और ये हम जानते हैं कि गतसमनी की मिट्टी में जब यीशु का लहू मिला था तो वो हमारी किन लानतों को कैंसिल करने के लिए था। जमीन पे जब वो मिला तो हमारी जो जमीन हमारे गुनाहों की वजह से लानती हो गई थी, यानी कि जो गुनाह बागे अदन में किया इंसान ने, पहला गुनाह जब किया तो उस गुनाह की वजह से इंसान की जिंदगी में बगावत, खुदगर्जी, अपनी मर्जी करने की जो एक गंदी स्पिरिट है कह लें आप, या उसके अंदर जो है ये एक बुरी चीज, एक बुरी लानत उसमें दाखिल हो गई थी कि इंसान अपनी मर्जी करना चाहता है, खुदावंद की, यीशु की, हमारे अपने खुदा की मर्जी पर चलना पसंद नहीं करता। इस चीज से रिहाई देने के लिए वो जो लहू था उस जमीन पर टपका था, उसका रीजन ये था। और यीशु के लहू में इतनी कुदरत है कि उसने उस लानत को गतसमनी बाग में, हमारी उस लानत को, हमारी खुदगर्जी की लानत को, हमारी नाफरमानी की वजह से जो लानत हम पे पड़ी थी, उस लहू ने उसको कैंसिल किया था, उसे तोड़ा था, उन बंधनों को तोड़ा था और हमें आजाद किया है कि हम आज भी उससे आजाद हैं। जब भी हम खुदावन के हजूर आते हैं हम माफी मांगते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमें अक्सर कहा जाता है कि नजात जो है वो, अगर तुम्हें नजात पानी है तो तुम्हें ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। हम समझते हैं कि हमें एक लंबी लिस्ट दे दी जाएगी कि तूने शराब छोड़नी है, तूने सिगरेट छोड़नी है, तूने नाच रंग छोड़ना है, तूने ये छोड़ना है, तूने वो छोड़ना है। लेकिन ये
यानी कि ये सब चीजें जो है नाफरमानी में है ना, कि जब हम नाफरमान होते हैं तो हमारे अंदर बुरी आदतें आ जाती हैं। और वो यही ये जो गतसमनी बाग में जो लहू बहाया गया था, वो हमें इन्हीं चीजों में से निकालने के लिए बहाया गया था, कि हमारे अंदर से ये चीजें जाती रहें। समझ में आ रहा है सबको? मुझे प्लीज कोई एक आधा बंदा रिस्पॉन्स दे ताकि मैं समझ हाँ सकूं कि जी। आप लोग। बिल्कुल समझ आ रहा है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो असल में ये नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हमें जो है निजात जो है वो चीजें छोड़ने से मिलेगी। असल में निजात जो है वो यीशु को कबूल करने से मिलती है। एक इंसान नशा भी नहीं करता, एक इंसान फर्ज करें एक इंसान नशा भी नहीं करता, वो लड़ता भी नहीं है, वो झगड़ता भी नहीं है, वो लड़ाई भी नहीं करता, वो गालियां भी नहीं देता, वो यानी कि ऐसा कोई काम नहीं करता जो खुदा को ना गवारे, लेकिन अगर उसने यीशु को ही कबूल नहीं किया तो उसके अंदर निजात नहीं है। मतलब वो अभी तक वो बगावत की जिंदगी ही गुजार रहा है, अभी तक वो यीशु से दूर है। तो यीशु से करीब हमें कौन सी चीज लेके आती है? फर्मा बरदारी लेकर आती है। यीशु के करीब जो है हमें जो है फर्मा बरदारी लेकर आती है। जब हम उसके फर्मा बरदार होते हैं, उसकी सुनकर उसकी चलना शुरू होते हैं, जब हम अपनी खुदी को मारकर यीशु की मर्जी को पूरा करते हैं, यीशु मसीह खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। यीशु मसीह ने भी गतसमनी बाग में यही कहा था कि ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो जब हमारी जिंदगी में ये आ जाता है ना कि ऐ बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तो तब जो है हमारी जिंदगी में यीशु आता है, खुदा का रूह काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो गतसमनी बाग में जो लहू बहाया गया था, उसकी वजह वो इस वजह से उसका जो रीजन था वो ये था कि हमारी जिंदगी में से ये लानतें खत्म हो। अब मैं आपको ये दुआ बताना चाहती हूँ कि आपने प्रेयर कैसे करनी है, दुआ कैसे करनी। तुसी किवें अपने आप ही अपने खानदाना वास्ते दुआ करनी, अपने बच्चों लिए दुआ करनी। जे तुसी किसी जगह ते वेखते पे हो कि मेरे बच्चे थे नाफरमान हो रहे ने, या मेरा कोई अजीज जेड़ा ओदी जिंदगी दे विच यीशु दे कलाम दे मुताबिक नहीं चलदा पिया, ओ नाफरमानी कर रहा, बगावत करदा पिया यीशु दे नाल, खुदा दे कलाम दे नाल, ते तुसी ओदी उस जगह ते उस इंसान वास्ते दुआ करो कि खुदावंद यीशु के खून से मैं इसके अंदर से इस नाफरमानी की स्पिरिट को, इस शराब की स्पिरिट को, इस गुस्से की स्पिरिट को, इस ये जो स्पिरिट जो गालियां निकालती है, इस जुबान को यीशु के खून से मैं धोती हूँ, उस लहू से धोती हूँ जो गतसमनी बाग में मेरे लिए इसके लिए बहाया गया। हालेलुया। तो देखना आपकी जिंदगी में या आपके अजीजों की जिंदगी में ये चेंज आना शुरू हो जाएगा, काम करेगा। अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे नाफरमान हैं, खुद गर्ज हैं, वो खुदा की नहीं बल्कि आपकी नहीं बल्कि अपनी मर्जियां पूरी करना चाहते हैं, वो अपनी मर्जियों पे उनके रास्ते गलत हैं, तो तब आप उनके लिए दुआ करें, अपने बच्चों को यीशु के खून में छुपाएं और उन्हें कहें कि ऐ खुदावन मैं अपने बेटे को अपनी बेटी को तेरे लहू में छुपाता हूँ और तेरे उस लहू की कुदरत को मांगता हूँ जो तूने गतसमनी बाग में मेरे लिए और इसके लिए बहाई, वो फर्मा बरदारी इसके अंदर उस लहू के बहाने से आ जाए खुदावन यीशु के नाम में, उस लहू के वसीले से वो फर्मा बरदारी इसके अंदर ट्रांसफर होती जाए और यीशु के नाम से नाफरमानी, खुदगर्जी, गुस्सा, गाली गलूच, दुनियादारी, वो सब चीजें जाती रहे जो तुझे नापसंद है खुदावन, जो तुझसे दूर करती हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। इस तरह से जो है आप जब दुआ करना शुरू कर देंगे अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आप यकीनन यीशु के नाम से मौजज़ा देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमने जो है यीशु का लहू जो है हमें फतह बख्शता है, यीशु का लहू हमें रिहाई देता है, वो हमें जिंदगी देता है क्योंकि वो जिंदा खुदा का है। यीशु के आप इस बात को ये सब जानते होंगे कि जब इस्राएल कौम को खुदावन ने मिस्र से निकल जाने के लिए कहा था, तो उस एक रात जब उसने कहा था कि तुम अपनी चौखटों पर बर्रे के लहू को लगा दो ताकि जब मौत का फरिश्ता आए तो वो तुम्हारे पलौठों को ना मारे, वो लहू को देखकर गुजर जाएगा, क्योंकि जिस चौखट पे लहू बर्रे का लहू होगा उस घर में जिंदगी होगी। हालेलुया। तो आज हम जिस लहू की बात कर रहे हैं वो लहू वो तो इनके उस टाइम जो लहू लगाया गया था वो किसी जानवर का था, लेकिन आज जिस लहू की बात की जा रही है वो लहू किसी जानवर का नहीं बल्कि जिंदा खुदावन यीशु नासरी का है।
प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप खुद इस बात को सोचें कि जब उस लहू को मांगा जाएगा, जब यीशु के जिंदा यीशु नासरी के लहू को आप अपने बच्चों की, अपने शौहर की, अपनी बीवी की, अपने अजीजों की जिंदगी में मांगेंगे कि खुदावंद इनकी जिंदगी में से खुदगर्जी, नाफरमानी, बदगुमानी और बगावत की स्पिरिट जाती रहे, तो यकीनन वो लहू यीशु के नाम में काम करेगा। हालेलुया, क्योंकि वो लहू कुदरत वाला है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र हो। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे। जो सेकंड जगह जो थी जहां पे यीशु का लहू बहाया गया, वो थी जब यीशु को 1:40 कोड़े पड़े, यानी कि 39 1:40 कोड़े जब उसने खाए, तब उसका लहू बहाया गया। हम सब जानते हैं कि यीशु को कोड़े पड़े, पर हमें शायद इस बात का नॉलेज काफी लोगों को होगा, और जिनको नहीं है उन्हें मैं भी बताना चाहती हूँ कि वो कोड़े जो थे वो एक उस टाइम पर दो किस्म के कोड़े मारे जाते थे। एक कोड़ा था जिसकी 9 शाखें होती थी, और एक कोड़ा था जिसकी 3 शाखें होती थी। तो यीशु को मारने के लिए जो कोड़ा इस्तेमाल किया गया था वो 3 शाखों वाला कोड़ा था। और जब उस वक्त जिस इंसान को कोड़े पड़ते थे, उसके हाथों को, उसके पैरों को बांध दिया जाता था और फिर उसको कोड़े मारे जाते थे। तो और जो कोड़ों के जो आगे जो 3 शाखें थी, उसके ऊपर शीशे की नोकीली या कोई मेटल धात की जो है नोक वाली जो है, जैसे कांटे होते, उस तरह की बनाकर उन कोड़ों के आगे लगाए हुए थे। तो उससे कोड़े मारे जाते थे। तो जब यीशु को जो कोड़ा मारा गया, जो 3 शाखों वाला था, उसके ऊपर मेटल के जो है पीसेस लगे हुए थे। तो और जो जल्लाद जो था, जब यीशु को कोड़े मार रहा था, वो अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे जोर से मेरे और आपकी यीशु की पीठ पर मारता था। और जब वो खींचता था उसे कोड़े को, तो यीशु का मांस, उसकी चमड़ी 3 बार जो है वो उतर के उसके साथ आती थी। और यीशु इतनी तकलीफ जो है हमारे लिए बर्दाश्त कर रहा था, और उसको 39 कोड़े जो है इस तरह से मारे गए, और 3 शाखें उन कोड़ों की उसके बदन पे लगती थी। और वो जब उसको जल्लाद उसको जोर से मारकर जब खींचता था, तो उसका चमड़ा, उसका गोश्त उनके साथ बाहर आता था। यीशु इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था, खामोश होकर। उस तरह से जब भेड़ को जो है उसके बाल जब कुतरे जा रहे होते हैं, तो वो खामोश खड़ी रहती है, वो भी खामोश रहा। उसने सब होने दिया मेरी और आपकी शिफा के लिए। हालेलुया। पहला पतरस कोई पढ़ेगा? पहला पतरस उसका 2 बाब उसकी 24वीं आयत। और दूसरा भी है यसाया की किताब, उसका 53 चैप्टर, उसकी 5वीं आयत। पहला पतरस, पहला पतरस उसका 2 बाब उसकी 24वीं आयत। 24 ओके। ਉਸਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜੀਏ। ਉਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋਏ ਹੋ। हालेलुया, आमीन। आमीन। मैं इसको उर्दू में पढ़ती हूँ। हाँ जी, आप तब तक दूसरी आयत निकालें। यसाया की किताब उसका 53 चैप्टर है और 5वीं आयत है। ठीक है। पहला पतरस उसका 2 बाब से 24 आयत में उर्दू में पढ़ती हूँ। वो आप हमारे लिए हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। पतरस कहता है कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई, यानी कि जो मार कोड़े खाते वक्त उसने खाई, असल में वो हमारी बीमारी, हमारी शिफा के लिए था, हमारी शिफा के लिए बहाया गया था वो लहू। अब ये यसाया की किताब उसका निकाल ली सिस्टर। 53 का कितना था? 5 5। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਉਸਨੇ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया। उर्दू में भी मैं पढ़ूं कि काफी है? चले मैं उर्दू में पढ़ देती हूँ। मैं पढ़ दूं सिस्टर जी? मैं पढ़ दूं चलिए उर्दू में? पढ़ दें, आप पढ़ दें अगर आपने निकाल लिया तो। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आमीन। हालेलुया। यसाया भी हमें ये बताता है कि ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। यसाया ने ये कलाम, ये पोर्शन को, ये सब कुछ, ये सारी बातें यीशु मसीह के पैदा होने से पहले की, यानी कि ये सारा खुदा का मंसूबा था। यीशु किस लिए जमीन पर आया, क्या काम यीशु ने करना था, ये सारा खुदा का प्लान था पहले से ही, कि कैसे जो है हमें फतह मिलेगी, कैसे इब्लीस का जोर टूटेगा, कैसे जो है वो शर्मिंदा होगा, वो हारेगा। तो जो बीमारी है, अब ये हम कहते हैं या कोई कह देता है कि जी बीमारी खुदा ने सजा दे दी। बीमारी कभी भी खुदावन की तरफ से नहीं आती है। बीमारी जो है वो इब्लीस से आती है। अब बीमारी जहन्नम में से आती है। कभी भी बीमारी, खुदा के इरादे हमें बीमार करने के नहीं है। बीमारी दुश्मन भेजता है, खुदावन नहीं भेजता। कलाम ये कह रहा है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, तो फिर हमें कोई कैसे कह सकता है कि हमें बीमार खुदा ने कर दिया? खुदा का यीशु का जो लहू है वो हमें शिफा देता है। खुदा के इरादे हमारी शिफा के लिए हैं, हमें बीमार करने के इरादे हरगिज नहीं है। हमारा खुदावंद हमें शिफा देने के लिए आया है, हमें जिंदगी देने के लिए आया है। तो हमें जो है इस बात के लिए जो है दुआ कैसे करनी है, हमें ये कहना चाहिए कि ए बीपी, ए शुगर, ए कैंसर, ए अल्सर और हर तरह की एलर्जी जो मेरी जिंदगी में आई है, मेरे बदन में आई है, उसको मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ कि तेरा मेरे बदन पर, तेरा मेरी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं है। दूर हो, दफा हो मेरी जिंदगी में से, यीशु के नाम से निकल जा। मैं अपने बदन पर, अपने उस हिस्से पर जहाँ पे मुझे तकलीफ है, मैं यीशु के उस लहू को मांगता हूँ जो उसने कोड़े खाते वक्त मेरे लिए, मेरी शिफा के लिए, मेरी बीमारी को खत्म करने के लिए बहाया। उस लहू को मैं मांगता हूँ, क्योंकि उस लहू में कुदरत है। वो लहू मेरे लिए बहाया, मेरे लिए कीमत दी गई है। जो शिफा मुझे मुफ्त मिलती है, उसके लिए मेरे यीशु ने कीमत अदा की है। हालेलुया। इस तरह आपने दुआ करनी है अपनी बीमारियों के लिए। अपनी बीमारी की जगह पर आपने यीशु के खून को मांगना है, यीशु के लहू को मांगना है, उस लहू को जो कोड़े खाते वक्त बहाया गया। और आप शायद नहीं जानते, कोड़े खाते, जब कोड़े मार दिए जाते थे तो जो जल्लाद थे, जो सिपाही, रोमन सिपाही जो थे, वो नमक लेकर आते थे और उस इंसान को जिसको कोड़े मारे जाते थे उसको जमीन पर उल्टा जो है कमर के बल से लटा दिया जाता था और उसके जख्मों पर नमक रगड़ा जाता था। और मेरा और आपका यीशु उस वक्त उस तकलीफ में तड़प रहा था जब उसके जख्मों पर नमक रगड़ा जा रहा था। वो हमारी शिफा के लिए ये सब कुछ सह रहा था, वो हमारी इस बीमारी की लानतों के लिए सब कुछ सह रहा था। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी ना ये सोचें कि कोई बीमारी या कोई तकलीफ खुदा की तरफ से हमारे ऊपर आ गई है, या इनकी बीमारियां खुदा ने भेजी हैं। खुदा हमें कभी बीमार करने के लिए नहीं आता। इसके तो इरादे हमें सेहतमंद रखने के हैं, हमें जोर देता है, वो हमें जोर बख्शता है, वो बीमारी के बिस्तर से हमें उठा खड़ा करता है। हालेलुया। तो खुदावन जो है हमें शिफा देने के लिए आया है, उसके इरादे हमें शिफा देने के लिए हैं। अपनी बीमारियों पर यीशु के इस लहू को आपने इस तरह से मांगना है, कैंसिल करें, अपनी बीमारी को दूर भगाएं और ईमान से मांगें, क्योंकि जब हम ईमान से मांगते हैं तो पहाड़ भी मैदान हो जाते हैं। तो बीमारी क्या चीज है? यीशु के लहू को अपनी जिंदगी में, अपने घरानों में, अपनी बीमारियों की जगह पर, अपने घरानों में जहाँ नाफरमानी और बगावत है, वहां पर यीशु के लहू को ईमान के साथ मांगे, तो आप अपनी जिंदगी में जरूर चेंज देखेंगे। आप खुदा का काम देखेंगे, उसका मौजज़ा देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
आज मैं ये 2 टॉपिक्स डिस्कस करना चाहती थी कि ताकि हम इसके ऊपर हमारा फोकस हो और हम अच्छी तरह से दुआ करना सीखें। और बाकी जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जहाँ पे ये जो खून बहा और उस पे हमने कैसे अपनी जिंदगी में उन जुओं को, उन बंधनों को, उन लानतों को हमने पीछे हटाना है, तोड़ना है, कैंसिल करना है, वो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। मेरा ईमान है कि जितना हमने आज सीखा है ये 2 पॉइंट्स पर उस तरह से आप अपनी जिंदगी में दुआ भी करेंगे। मेरी कोशिश, जो मेरी रूह का जो बोझ है, वो असल में यही है कि हम सबको दुआ करनी आनी चाहिए। हमें जंगजू बनना है। दुल्हन को जो है अपने सब हथियार दुल्हन के पास होने चाहिए। हम पाकिस्तानी कह रही हूँ, हम कोई ऐसी दुल्हने नहीं है जो बड़ी नाजुक है और वो कुछ कर नहीं सकती। यीशु की दुल्हन जो है वो लड़ती है, वो जोरावर है, वो मजबूत है, वो खड़ी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा ईमान है कि आप सबको इससे बरकत मिली होगी। अब क्लोजिंग प्रेयर सिस्टर सुरैया की है, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माजरत है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को बरकत दे। हम सिस्टर शाहीन से कहती हैं कि वो एक दफा आए और फिर अपने ख्यालात का इजहार करें। हम सिस्टर शाहीन को कहते हैं कि वो आए और आगे मीटिंग को लीड करें। सिस्टर शाहीन। जी, Lord. प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद दीदी Praise आपको the बड़ी Lord, praise बरकत the दे। Lord. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जो खुदावंद का लहू है वो कुदरत वाला है, वो जिंदगी वाला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और वाकई ही दोलन जो है हमारी, जो है बाइबल हमें यही सिखाती है कि वो जंगजू है। जैसा कि हम गज़ल-ओ-ग़ज़लात में, है ना, सॉन्ग ऑफ सालमन में देखते हैं कि वो क्या है, वो फौज है। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है शुरू से ही कि हम हर तरीके से वो जो जंग करना है उसके लिए जो चाहिए उसके बारे में हम सीखें, बात करें। तो खुदावंद का शुक्र है दीदी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद इसी तरह अपने नाम, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। और वाकई ही जो हमारे में ठीक है, खुदा ऊपर चार्ज बैठी है जी। खुदावंद यीशु मसीह का खून ऊपर है, चार्ज चालू बैठी है। वो हमें मुकम्मल शिफा देने की कुदरत रखता है। तो इसलिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के सारे कलाम के लिए, आज की सारी आवाज़ के लिए जो खुदावंद ने मेरे से आपसे बात की है कि वो कुदरत वाला लहू है। तो हमें किसी चीज़ की, किसी और की ज़रूरत नहीं है कि हम, तो यही तो मैं शुरू से जैसे कह लें कि समझाने की या उसकी कोशिश करती हूँ कि हमें किसी दवाई की, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ़ यीशु का खून जो है वो चाहिए। तो आप ईमान रखें और ज़रूर इस दवाई को इस्तेमाल करें अ, जो कि अंदर से बाहर से हम दवाई खाते हैं तो वो हमारे जज़्बात को शिफ़ा नहीं दे सकती। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है, जो हम कहते हैं दिल टूट गया है, आप सोचें कि इसकी कोई दवाई है किसी डॉक्टर के पास, है ना? तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास उसकी भी दवाई है, उसके लिए भी खुदावंद यीशु मसीह ने खून बहाया है। हालेलुया! तो हालेलुया। ज़रूर इस खून को अपने ऊपर अप्लाई करें और दुआ में बोलें, रिश्तों को जोड़ने के लिए। जैसा कि कल भी हमने सीखा था कि अगर मियाँ-बीवी में या उसमें कोई लड़ाई झगड़ा है, तो खुदावंद यीशु मसीह का खून उसको भी जोड़ने की कुदरत रखता है। हालेलुया! तो हालेलुया। गॉड ब्लेस यू दीदी। और जी, जी, उसी की। जी, हम श्रेया के साथ मिलके दुआ करते हैं। और श्रेया जैसे कि रिक्वेस्ट आई है अरसलान के लिए, हम उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। और बाकी मेरा ख्याल है आप सबको जो रिक्वेस्ट है हमारी वो सब आपको पता है ना? तो मेरा ख्याल है कि हम उन सब के लिए प्रेयर करेंगे।
तो वो छोटी जी बच्ची को दुआ करनी है जेल की जो। जी 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 सुरैया, हम सुरैया के साथ मिलके प्रेयर करेंगे। ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਉਦਾਂ 2 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੋਇਆ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। हालेलुया, प्रेज गॉड। Praise the Lord, फिर hallelujah. तो बहुत ही बड़ी शुक्रगुजारी। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। प्रेज Yeah. गॉड, प्रेज गॉड। ਕੱਲ ਮੈਂ Praise the ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰਦੀ ਆ। हालेलुया, प्रेज गॉड। ਜੀ लो जी सुरैया फिर वादे जा रहे हैं बगैर दवाई तो साडे मेंबर। हालेलुया, सुरैया और अंजना है हमारे साथ, है ना, इस फेथ में खड़े होने के लिए। और अब सिस्टर महेंद्र हैं। ਹਾਂਜੀ हालेलुया, और वफा भी है हमारे साथ, Amen, amen. और Praise the सोनिया Lord. तो पहले ही है। Hallelujah. प्रेज गॉड, हालेलुया। जी सुरैया। ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਾਕੇ ਕੋ ਕਹਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤ, ਮਾਮੀ ਨੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਪਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। तो बहुत ही खूबसूरत ये गीत है। सो खुदावन का शुक्र है कि उसका लहू हमारी इन तमाम हेलो ਮਾਰ जी जी ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। सो ये यीशु मसीह का बेशकीमत लहू ही है जो हमारे गुनाहों के लिए और हमारी शिफा के लिए और हमारी लानतों को ब्रेक करने के लिए बहाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी का बेशकीमत लहू है जो इन तमाम बीमारियों से और तमाम हमारे गुनाहों से हमें रिहाई देता है। हम उसके बेशकीमत लहू के लिए एक दफा फिर शुक्रगुजार हैं। और जो सिस्टर शाहीन के वसीला से हमने सुना, हम इन तमाम बातों के लिए शुक्रगुजार हैं जो उसकी बंदी ने बड़े दिलजमई से हमारे साथ जो शेयर किया, हम उसके शुक्रगुजार हैं। और आज जो समरीन ने हमारे साथ शेयर किया, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने जो उसके पॉइंट थे, उसने उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ख्यालात का इजहार किया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो जिस भी रूप में आता है, वो कलाम में मुकद्दस कहता है कि खुदावंद का कलाम जिस भी रूप में आता है वो असर दिखा के रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। खुदा हम में से हर एक को इस्तेमाल कर सकता है, खुदा हम में से हर एक को ले सकता है, वो कि हम अपने आप को उसकी हुजूरी में पेश करें, क्योंकि उसने कहा कि तू अपने मुंह को खूब खोल, है ना, तो अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसे बरकतों से भर दूंगा। जरूर है कि हम उसके मुतलाशी हों, जरूर है कि हम उसके पास आए, जरूर है कि हम अपने ख्यालात का इजहार उसके सामने खोल दें, जरूर है कि हम अपनी परेशानी, अपनी उदासी, अपनी कोई भी मुश्किल, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, हम उसके सामने शेयर करें, ना कि हम लोगों के सामने उसको डिस्कस करें जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर है कि हम उसके हुजूरी में आए, हम उसके पास आए, ताकि वो हमें ले और हमें अपने नाम के जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करे और यूजफुल वेसल बनाए। सो खुदावन का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। मैं एक आयत पढ़ना चाहूंगी दोबारा, यही पहला पतरस उसका 2 बाब 24वीं आयत। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। हालेलुया, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए खुदावन के कलाम के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। या पर हालेलुया, एरे बेरे 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 शिंदरो जिरी, एरे बेरी बेरी जिरी से शिंदरो जिरी, एरे बेरी बेरी जोरो शिंदरो जिरी, यो शिंदरो जिरी,
praise Lord, praise Lord. Glory to Jesus, wonderful. Lord, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। Yes, मेरा हालेलुया। आज तेरे लहू पे बाप, हम तेरे लहू की रंगीनों के बाप अपनी जिंदगी में मांगते हैं, तेरे लहू की ताज़गी को अपनी जिंदगी में मांगते हैं। आज बाप हम तेरे प्रेम की कुदरत को अपनी जिंदगी में मांगते हैं। यस माय लॉर्ड, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ और तेरी तारीफ करते हैं। आज अब हम दुश्मन को शिकस्त देते हैं यीशु के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ। यस माय लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन देख तेरा कलाम कहता है कि तेरे कि हमारे गुनाहों को अब तू अपने बदन पर ले अपने बदन पर लिए सलीब पर चढ़ गया। हमारे गुनाहों के लिए तूने सलीब गवारा कर ली। आए इस बात के लिए दुआ करें कि जिस तरह से वो पौलुस रसूल करे कि हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। उसने आए उस सलीब की कुदरत को पुकारे, आए सलीब की कुदरत का इकरार करे यीशु के नाम से, और अपने गुनाहों का इकरार करे, अपनी हदायत की नाराजगी का इकरार करे कि खुदावन मैं तौबा करती हूँ, खुदावन मैं कन्फेस करती हूँ, मैं इकरार करती हूँ, तो मुझे माफ कर। और यस लॉर्ड, क्योंकि तू सलीब पर चढ़ गया मेरे गुनाहों के लिए। और यस लॉर्ड, हालेलुया। और यस माय लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। आए और जो कुछ हमसे खता हुई है, जो कुछ हमसे खताएं गुनाह सरजद हुए हैं, जो वो पोशीदा हो, वो कैसे भी पोशीदा गुनाह हो, तो भी वो कहता है कि तुम्हारे जो गुनाह है वो बर्फ के मन धुलकर सफेद हो जाएंगे। और यस खुदावन का ज़ुरी यहाँ पर मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में हम इकरार की दुआ करेंगे। जो भी आप इकरार, जो भी आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक हस्ती है जो हमारे दिल की सरसराहट को भी जानती है, जो हमारे अंदरून को जानती है, जो हमारे अंदर को जानती है, जो हमारे मांगने से पहले ही जानती है। एक हस्ती है, वो है खुदा की हस्ती, जो जानती है, जो सब कुछ जान लेती है। तो आए इकरार की दुआ करें जो हम इंसानों के सामने नहीं खोल सकते हैं, जो हम इंसानों के सामने बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने खुदा को बयान कर सकते हैं। हमारा खुदा कभी हमें बेपर्दा नहीं करता है, वो हमें ढांक देता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। तेरा शुक्र अदा करते हैं दावन, तेरे बेश के मतलब के लिए और तेरे स्लीप पर चढ़ जाने के लिए दावन, कि तू हमारे गुनाहों के लिए तूने स्लीप को ले लिया। अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज तूने हमसे कहता है कि मैं तेरे लिए स्लीप पर चढ़ गया हूँ, मैं तेरे लिए एक कम 40 घोड़े खाए हैं। आया मेरी बेटी, है मेरे बेटे, मेरे पास वापस लौटा। यस लॉर्ड, हालेलुया। आज हम दुनिया की भीड़ में ना खो जाए यीशु के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, दावन आज अब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, दावन जो हमसे दानिस्ता और दानिस्ता तौर पर जानते बूझते और ना जानते हुए अब आप हमसे गुनाह सरजद हुए, तो हम तुम्हें माफ कर यीशु के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। और अपने उन तमाम गुनाहों पर अब हम बड़े के लहू का लगाते हैं बाप, ताकि अब आप हमारे गुनाह अब आप ढांके जाए बाप। और यस फादर गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड। दावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करते हैं। इसी तौर से बाप तेरा बंदा पौलुस रसूल कहता है ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। आए आज रास्तबाजी के एतबार से आगे बढ़े, हम रास्तबाजी में एक कदम आगे बढ़े। आज जिस तरह से यीशु मसीह ने उसको कहा, पतरस को कहा, क्या तू मेरे लिए मरने को तैयार है? और यस, और आज वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या हम उसके लिए मरने को तैयार हैं? क्या हम उसके लिए जान देने को तैयार हैं? और यस लॉर्ड, क्या हम अपना हर तरह का रवैया, हर तरह की बदकिरदारी, हर तरह की निकम्मी सोच, हर तरह की बुरे रवैये, हर तरह के बुरे ख्याल, हर तरह की नाराजगी, हर तरह की गुनाह, हर तरह की हरामकारी, जिनाकारी, बुत परस्ती और यीशु के नाम से हम छोड़ने को तैयार हैं। आए यीशु के नाम से हम उन तमाम बातों को दूर करें। वो आज हमसे कहता है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम मेरे साथ मरने के लिए तैयार है? मेरे लिए जान देगा? और यस लॉर्ड, यीशु ने पतरस से क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? वो क्वेश्चन मार्क कर रहा है। और यस लॉर्ड, अपने आप को तैयार करें, कहे क्या खुदावन, मैं अपनी हर की निकम्मी बात को दूर करती हूँ, मैं अपनी हर की नाराजगी को दूर करती हूँ यीशु के नाम से बाप, ताकि मैं रास्तबाजी में आगे बढ़ूं, ताकि मैं बाप ईमानदारी में आगे बढ़ूं, ताकि बाप मैं पाकीज़गी में आगे बढ़ूं यीशु के नाम से। हालेलुया। एरी बीरी तेरे बेजेरे रोज़
जोरो रशिंदे बेरे ज़िरी यीशु नासरी के नाम से बाप यस माय लॉर्ड आए उस कलाम को क्लेम करें जिस ओर से हमने सीखा है कि हमें दुआ करना आना चाहिए, हमें दुआ करनी सीखनी है, हमें अप्लाई करना आना चाहिए, हमें कलाम को यूज करना आना चाहिए, हमें लहू की कुदरत का इस्तेमाल करना आना चाहिए। यस और हालेलुया आए उस लहू को लगाएं अपनी रास्तबाजी के लिए, अपनी पाकीज़गी के लिए, अपनी रूहानी जिंदगी के लिए। यस प्रेज द लॉर्ड वंडरफुल लॉर्ड यस माय लॉर्ड। आज है बाप हम रास्तबाजी में एक कदम आगे बढ़ते हैं बाप, तेरी इसलिए की कुदरत के सिला से एकदम बाप गुनाहों के एतबार से हम मर जाना चाहते हैं। यीशु के नाम से बाप गुनाह का हम पर कोई इख्तियार ना हो यीशु के नाम से बाप। यस यस हालेलुया हम दुश्मन का जोर दुश्मन गिरफ्त हमारी जिंदगी से ढीली होती रहे बाप यीशु के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड दाऊद इकरार करते हैं जहां हमने तुझे टाइम नहीं दिया दाऊद उस हमारे उस टाइम को दाऊद तुम माफ कर बाप, जहां बाप हमने तुझे दूर किया बाप, तुझे पीछे हटाया बाप, तो हमें माफ करा बाप। यस माय लॉर्ड तेरा ही शुक्र हो, तेरी ही तारीफ और तेरी तारीफ करते हैं। जहां है बाप हमने नाच रंग किया है बाप, जहां हमें बाप कट्टाबाजी की है बाप यीशु के नाम से बाप बाप बुरी सोबतों पर बाप दाऊद हम तुझे जाते हैं दाऊद तेरा के मिन्नत करते हैं दाऊद इन सब पर बाप तेरे लहू आए बाप तेरे दाऊद तेरे कलाम की कुदरत काम करे बाप ताकि ये सारे रवैये बाप हमारी जिंदगी से जाते रहे और हम तुझ में अब बढ़े, हम रास्तबाजी में बढ़े बाप, हम पाकीज़गी में बढ़े हैं बाप यीशु के नाम से बाप। यस लॉर्ड हालेलुया तेरा ही शुक्र तेरी तारीफ हो। यस माय लॉर्ड आज है बाप हर की नाराजगी है बाप, हर का गुनाह है बाप, हर का सीना बाप हमारी जिंदगी से जाता रहे, हमारे बच्चों से जाता रहे, हमारी फैमिली से जाता रहे, हमारे हस्बैंड से जाता रहे और यीशु के नाम से बाप हमारे रिश्तेदारों में जाता रहे, हमारे प्यार से जाता रहे, हमारी बुरी सोच से दान बाप जाती रहे हमारी जिंदगी से यीशु के नाम से बाप हालेलुया और बुरी लत जाती रहे यीशु के नाम से बाप इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से बाप हालेलुया ए रबे रिजी भी से रशिंद बहुत और रजीरी यीशु के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड यस फादर गॉड हालेलुया खुदावन तेरा है शुक्र तेरी तारीफ। आज हमारे रिश्तों में पाकीज़गी आ जाए, आज हमारे हस्बैंड और वाइफ दाऊद हमारे रिलेशन में पाकीज़गी आ जाए, दाऊद बाप दाऊद एक नया दाऊद बाप सीजन आ जाए यीशु के नाम से बाप। यस फादर गॉड हालेलुया यस माय लॉर्ड तेरा है शुक्र तेरी तारीफ तेरा है शुक्र अदा करते हैं। यस माय लॉर्ड जहाँ टूटे रिश्ते हैं वो जुड़ते चले जाए बाप, जहाँ है बाप दाऊद बेदिली है मायूसी है दाऊद है बाप दाऊद कोई भी दाऊद ऐसी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से बाप उस जगह पर हम बड़े के लहू को लगाते हैं इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से बाप तो रिश्तों को बहाल करता है, तो रिश्तों को जोड़ता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं दाऊद हम तेरे लहू को दाऊद इन तमाम बंधनों पर दाऊद इन तमाम रिश्तों पर अब आप हम मांग लेते हैं यीशु के नाम से बाप। यस फादर गॉड हालेलुया दाऊद कोई भी दुश्मन अब का तीर वार ना करने पाए दाऊद दुश्मन का जो तीर है दाऊद वो टूटते चले जाए बाप, दुश्मन के हाथ ढीले बढ़ते चले जाए बाप यीशु नासरी के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड हालेलुया जब बेतरतीबी जाती रहे बाप यीशु नासरी के नाम से बाप। यस फादर गॉड तेरा शुक्र अदा करते हैं। इसी तौर से बाप देख तेरा बंदा पालूस कहता है कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। हालेलुया ग्लोरी टू जीसस वंडरफुल लॉर्ड दाऊद तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस माय लॉर्ड दाऊद तेरा कलाम हमें बता रहा है तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। यशायाह कहता है कि उसी के मार खाने से हम सब ने शिफा पाई है। यस फादर गॉड हम तेरे कलाम को क्लेम करते हैं यीशु के नाम से बाप। अब आप जिनकी रिक्वेस्ट आई है बाप दाऊद ने बाप जिन्होंने रिक्वेस्ट की है और सलाम के लिए अब आप हम तेरे इस कलाम को क्लेम करते हैं कि तेरे मार खाने से तेरे बंदे ने शिफा पाई है यीशु नासरी के नाम से बाप। दाऊद अब आप नदीम ने अब आप शिफा पाई है, अब आप सिस्टर महिंदर ने शिफा पाई है। अब आप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। सो अब आप इन जिंदगियों का हम नाम बनाम अब आप हम सब मिलकर अब आप इकट्ठे होकर अब आप हम तेरी हजूरी में दाऊद अपनी होंठों को खोलते हैं और दाऊद इनके लिए शिफा का कलाम करते हैं यीशु नासरी के नाम से जो उसने कहा है कि मैं तुम्हें अपना इख्तियार दिया है। यस लॉर्ड हालेलुया रीजी बीजेरे रे शिंदरो रोजरो रजीरी एरे बेरे बेरे रे सेरे रे शिंदो बोजरो रजीरी रियो रोजरो रोजरो बेरे सेरे रे शिंदे बेरे रजीरी। देख बाप तू दाऊद तेरा शुक्र अदा करते हैं दाऊद ने बाप तूने कहा है कि मैंने तुम्हें अपना इख्तियार दिया कि सांप और बिच्छू को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो और तुमको हरगिज़
किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। यस माय लॉर्ड, यस फादर गॉड। दाऊद हम तेरे लोग की कुदरत को दाऊद अब दुश्मन के तीरों पर दाऊद जो अब आप इस्लाम के खिलाफ दाऊद चलेंगे, अब आप हम यीशु के नाम से आप उस तीरों को तोड़ डालते हैं, दाऊद उन तीरों को वापस उसी के सीने में लग जाने का हुक्म देते हैं यीशु के नाम से। आप जो इस्लाम पर चलेंगे, दाऊद अपने बच्चे को छू और शिफा दे, दर्द जाती रहे, गला खराब जाता रहे, इंफेक्शन जाता रहे, टेम्परेचर जाता रहे, यीशु के नाम से बाप हम लहू को मांगते हैं, हम लहू की कुदरत को मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से बाप। अपने बच्चे को छू और टच करे बाप, दाऊद शिफा आए, बहाली आए बाप यीशु के नाम से बाप। दाऊद तेरा बच्चा मुकम्मल तौर पर शिफा पाए, हीलिंग आए बाप इन द नेम ऑफ जीसस। और दुश्मन के सर को कुचल डालते हैं बाप, उसके सारे प्लान को फेल करते हैं उसकी जिंदगी से बाप इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से बाप। यस यस फादर गॉड, वो अपनी उसके सारी कुव्वत को, उसके सारे जोर को हम यीशु के नाम से तोड़ डालते हैं। दाऊद अपने बच्चे को शिफा दे बाप, और इस्लाम के साथ हो दाऊद यीशु के नाम से बाप। यस यस फादर गॉड हालेलुया, और यस माय लॉर्ड हालेलुया। और बेरे बेरे जीरी शिंदोर और रोज जीरी बेरे जीरी जी और रोज और बोजर शिंदे बेरे जीरी यीशु के नाम से बाप। यस दाऊद तेरा लहू इसीलिए बहाया गया है दाऊद क्या हमारी जिंदगियों से लानते हैं ब्रेक हो, दाऊद हमारी जिंदगियों से बाप बरकत आए, हमारी जिंदगी में बरकत आए, प्रॉस्पेरिटी आए, दाऊद हर तरह की दाऊद लानत को, हर तरह के कर्ज को हम यीशु के नाम से ब्रेक कर देते हैं बाप। दाऊद नदीम की फैमिली से, दाऊद इस्लाम की फैमिली से दाऊद बाप हम यीशु के नाम से बाप हालेलुया इन फैमिली को दाऊद बच्चों को बरकत देते हैं यीशु नासरी के नाम से बाप। यस हालेलुया, हम तेरे लहू की रंगीनी को, लहू की ताजगी को यीशु के नाम से मांगते हैं, और डेथ के स्पिरिट को यीशु के नाम से बाप हम बाइंड करते, कमांड करते क्या कदम पीछे जाए इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से बाप। जो ख्वाब दाऊद देखे गए, जो ख्वाब देखे गए बाप, उन तमाम ख्वाबों का असर हम यीशु के नाम से ब्रेक कर देते हैं यीशु के नाम में, उसके लहू की कुदरत के वसीला से अब आप डेथ के स्पिरिट को बाइंड करते हैं और कमांड करते हैं कि अपने कदम पीछे जाए इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से बाप। हम तेरे से को तोड़ डालते हैं, हम तेरे से को ब्रेक करते हैं, हम तेरे तीरों को कुंदर फेर करते हैं यीशु के नाम से बाप। यस हालेलुया, दाऊद ये घराना बरकत पाए बाप, ये घराना शिफा में जिंदगी बसे करे बाप यीशु नासरी के नाम से बाप। यस हालेलुया, और बेरे जेरे शिंदर और जिगरी प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। दाऊद नदीम शिफा पाए बाप यीशु के नाम से बाप। यस यस दाऊद ने बाप दाऊद नौमी शिफा पाए बाप, या दाऊद अदनान शिफा पाए बाप यीशु के नाम से बाप। यस फादर गॉड हालेलुया, दाऊद माने को अब बाप हम तेरे हाथ में दे देते हैं यीशु के नाम से बाप। तेरे बच्चे की रूबन जान को अब तेरे हाथ में छिपाते हैं, तेरे लहू में दे देते हैं दाऊद। जो भी तेरे बच्चे ने ख्वाब देखे हैं उन सारे ख्वाबों का असर हम ब्रेक कर देते हैं, कोई भी असर बाकी ना रहे बाप यीशु नासरी के नाम से बाप। यस यस फादर गॉड हालेलुया, हमारा खुदा आता है तसल्ली देने आता है, शिफा देने आता है, बहाल करने आता है, मजबूत करने आता है। यस फादर गॉड तेरा हर शुक्र अदा करते हैं और साज लाते हैं यीशु नाम को देते हैं। इसी तौर से अब आप हम यीशु के नाम से दाऊद शीना के लिए, शीना के वीजे के लिए अब आप उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पर, उसके सारे प्लान पर, उसके सारे मंसूबों पर अब आप हम बड़े कर लहू को चाहते हैं यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। अब आप हम तेरे लहू की कुदरत को, तेरे लहू की धारा को अब आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स पर, सारे कागजात पर हम लहू को चाहते हैं, और उन हाथों पर जिन जिन हाथों में ये कागजात जाए, ये डॉक्यूमेंट्स जाए अब आप उन ज़हनों को अब आप हम तेरे लहू में छुपा देते हैं, तेरे पाक में तसल्लुत में दे देते हैं यीशु के नाम से बाप। तेरी बच्ची को जल्द और जल्द तेरा दाऊद वीजा मिले, और तेरी बच्ची जा सके, और तेरी बच्ची कामयाब हो, और तेरे नाम को जलाल मिले दाऊद। अब आप सारे डिलेस जाते रहे बाप, दाऊद दुश्मन का प्लान फेल हो और दुश्मन शिकस्त के बाप। दाऊद जो भी दाऊद रुकावटें है, बंधन है यीशु के नाम से बाप टूट जाए बाप इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से बाप। हालेलुया हालेलुया, और यीशु के नाम से बाप दाऊद तमाम रुकावटें टूट जाए, तमाम बंधन खुल जाए बाप, दुश्मन के तमाम प्लान फेल होते चले जाए बाप। जो भी उसने बांधा है उसको खोल देते हैं, और जो दुश्मन ने खोला उसको बंद कर देते हैं, हर रखने को जो दुश्मन ने खोला बंद कर देते हैं, हर रखना जो कामयाबी मेरे कवर का बायस बनता है उसको यीशु के नाम से अब आप उस रखने को बंद कर देते हैं, ये दुश्मन ने खोला हुआ है इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, तेरे बच्ची की जिंदगी में तेरा प्लान है दाऊद कामयाब होना के दुश्मन के। यस माय लॉर्ड हालेलुया, यीशु के नाम से बाप। यस यस लॉर्ड हालेलुया, यस फादर गॉड दाऊद अपने बच्चे को सरफराज कर और वक्त मुकर्रर पर अब अपनी बच्ची की दुआओं का जवाब दे, और तूने जवाब दे रहा है,
तूने जवाब दे दिए हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यस फादर गॉड, तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप। इसी तौर से बाप सिस्टर महेंद्र के लिए दाऊन हम तेरे शुक्रगुजार है। दाऊन तूने अपने बच्चे को शिफा दे दी, तेरे मार खाने से उसने शिफा पाई है। दाऊन तेरे कलाम में जो लिखा कि तेरे मार खाने से उसने शिफा पाई है, तेरे बच्चे ने मुकम्मल शिफा पाई। दाऊन उसने कोई लाठी इस्तेमाल ना की, उसने कोई हथियार इस्तेमाल ना किया, उसने तेरी लाठी इस्तेमाल की। अब तेरे कलाम को इस्तेमाल किया, तेरे लोग कुदरत का इस्तेमाल किया। अब बाप हम तेरे शुक्रगुजार है। दाऊन वक्त है कि उसकी शिफा ये कायम रहे यीशु के नाम से बाप, और दुश्मन चुराना ना पाए बाप, यीशु के नाम से बाप। यस यस फादर गॉड, हालेलुया। और बोरोजो रे बेरे रे जिरीरी शिंदोरो ज़रे बेरी बेरीजी रे बेज़रे रे शिंदो बोज़रो जिरी, तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस माय लॉर्ड, दान वो बच्ची दान जिस पर चाय गिरी थी बाप, हम तेरे आगे तक दान उस बच्चे के साथ ना, और दान सारे सारे दान बाप जले के दर्द पर हम बड़े के लहू को लगाते हैं यीशु के नाम से बाप। हाथ उस दर्द पर जिस जहाँ जो जली है जगह, दान उस पर तेरे बड़े के लहू की मरहम करते हैं इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से बाप। वो बच्ची शिफा पाए, तेरा शुक्र अदा करते हैं। दान आके भाई के लिए दान यूरिक एसिड है, दान यूरिक एसिड पर हम लोगों को लगाते हैं हड्डियों के अंदर, दान यहाँ पर यूरिक एसिड बनता है, दान उस जगह पर अब उन हड्डियों में हम तेरे लहू की कुदरत को मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से बाप। हालेलुया। दान यूरिक एसिड अब जाता रहे, यूरिक एसिड अब आप दान अब खत्म हो हड्डियों से बाप, यीशु के नाम से बाप, इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। और जीसस, हालेलुया। यीशु के नाम से तेरा बंदा मुकम्मल तौर पर शिफा पाए बाप। यस यस फादर गॉड, दान बच्चों के साथ तो बच्चों को बड़ी बरकत है, सराफीन को बड़ी बरकत है बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस माय लॉर्ड, साजरा हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम का मिले। दान बाप उम्मीद के लिए दान तेरा शुक्र है, तेरा थैंक्सफुल है बाप। दान तूने उम्मीद को दान बाप दान ये तौफीक बख्शी, दान तूने तब्दीली का मौका दिया बाप, तूने दान उसके गुनाहों को ढांक दिया, दान तूने उसको बाप ये मौका फराहम किया कि वो पानी का बपतिस्मा ले सके। इस बात के लिए बाप तेरा शुक्रगुजार है। वक्त है क्या बाप उसकी निजात जो है वो कायम रहे और बढ़ती चली जाए, और बहुत सा फल लाए तेरे बच्चा तेरे लिए, और इसकी जिंदगी में गहरे और जलाली काम होते चले जाए यीशु के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। दान तेरा बच्चा और वफा और उम्मीद दान मिलकर है बाप तेरे नाम को जलाल दे। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड। दान तूने दान उनको एक किया है, दान तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने उनको ईमान में एक कर लिया है बाप, हम तेरा शुक्रगुजार है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने उनके फेथ में एक कर दिया है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। वंडरफुल लॉर्ड, दान तेरा शुक्र, तेरी तारीफ दान। अब वो दान यकीनन बाप दान तेरे दान वो बरकत जो तुमको देना चाहता है बाप, तू उनको बरकत पर बरकत देने का जो तेरा वादा है दान तुमको देगा, तू दे रहा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। इसी तरह बाप तेरा आगे मिन्नत करते हैं दान कि जो भी हमारे अनमैरिड दान बच्चे हैं बच्चियां हैं दान, उनके लिए बाप हम चाहते हैं, हम तेरे लोग की कुदरत को मांगते हैं, उनके फ्यूचर प्लान पर, उनके जीवन साथी पर अभी से राइट नाउ बाप हम तेरे प्लान को चाहते हैं, तेरे लोग की कुदरत को चाहते हैं। जिस तौर से दान हम पुराने अहदनामे में देखते हैं दान की तरह के लोग कहते हैं कि मेरे घराने से लेकर आना, मेरी कौम में से लेकर आना यीशु के नाम से बाप। दान इनके लिए दान बाप तेरी दान अपनी कौम में से दान इनको रिश्ते मिले यीशु के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, यस फादर गॉड, हालेलुया। दान ये अपने कौम में से बाप कभी भी इधर उधर ना भटकने पाए दान, वो जिंदगियां जो तू इनकी जिंदगी में लेकर आना चाहता है दान, वो लोग इनके सामने आए बाप यीशु के नाम से बाप, और दुश्मन इनकी जिंदगी से शिकस्त खाता चला जाए बाप यीशु नासरी के नाम से बाप। दान कोई भी ये अपना फैसला नहीं बल्कि तेरे फैसले के इंतजार करें बाप, तेरे प्लान का इंतजार करे, तेरी मर्जी का इंतजार करे यीशु के नाम से बाप, क्योंकि तू खुद कहता है कि ना हमारे जुबे में मत जुतो। आज हमारे बच्चे हमारी बच्चियां बाप ना हमारे जुबे में मत जुटे दान, ईमानदार के साथ शादी करे यीशु के नाम से बाप, हालेलुया। यस यस फादर गॉड, ताकि बाप वो मुश्किल ना इनको उठानी पड़े दान, जो गैर ईमानदार से शादी करने में मुश्किल परेशानियां उठानी पड़ती हैं दान, इनको उन परेशानियों से तो बचा कर रखना यीशु के नाम से बाप। यस यस फादर गॉड, दान हम ना हमारे जो ना हमारे रास्तों को हमार करते हैं इनकी जिंदगी में यस फादर गॉड, हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से बाप दान ये ढूंढे ना, ये खुद से ना ढूंढे बाप, बल्कि तू इनके लिए दान बाप लेकर आए। जिस तौर से तूने दान बाप अपने लोगों के सामने दान तू बाप लेकर आया दावन बाप यस लॉर्ड, हालेलुया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यस फादर गॉड, तेरा शुक्र दान, तेरे ही प्लान जिंदगी में बाप दान पूरे हों यस, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ तेरी तारीफ करते हैं दान। ये अपनी कौम से दान अपने कबीले से इधर उधर ना जाए बाप यीशु के नाम से बाप। यस माय लॉर्ड, दान तेरा की मिन्नत करते हैं दावन, तेरा
आगे मिन्नत करते हैं बाप, इनके पीछे प्लान को हम बरकत देते हैं बाप, इनके पीछे प्लान में हम तेरी प्लानिंग को चाहते हैं बाप, तेरी मर्जी को चाहते हैं बाप। यस लॉर्ड हालेलुया, यस यस दाऊद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ तारीफ करते हैं हम साज लाते यीशु नाम को देते हैं। इसी तरह बाप दाऊद जावेद के लिए ए बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं दाऊद, तूने जावेद को ए बाप दाऊद उसकी सारी स्किन एलर्जी से तूने उसको रहाई दी है, तूने उसको शिफा दी है। ए बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, तेरा आगे मिन्नत करते हैं खुदा, तू आगे भी इसी तौर से अपने बच्चे के साथ साथ रहना, उसके आने जाने में बाप, उठने बैठने में तेरा लहू दाऊद की, तेरे लहू की कुदरत है बाप उसकी जिंदगी में काम करे यीशु नासी के नाम से बाप। यस फादर गॉड तो उसके साथ होना, उसकी जॉब प्लेस के साथ होना दाऊद, तेरा बच्चा जहां जाए दुम नहीं सब ठहरे यीशु के नाम से बाप। यस फादर गॉड यीशु मसीह के नाम है बाप, तेरा बंदा जहां कहीं जाए दान वो जगह इसका मिल जाए बाप, वो जगह तेरे नाम पे जीती जाए, वो लोग तेरे नाम पे जीते जाए यीशु नासरी के नाम से बाप। यस फादर गॉड दान तो अपने बच्चे के साथ हो, उसको जोर दे, कुव्वत दे, दिलेर कर है बाप। यस हड्डियों में तेरा जोर है, मसल में तेरा जोर है, तेरी ताकत आया बाप, तेरी लोगों की ताजगी है, रंगीनी है बाप, शिफा आया बाप, जोर आया बाप। यस लॉर्ड यीशु के नाम से बाप, अपने बच्चे के आने जाने में बड़ी हिफाजत करने की बानी करना ताकि तेरा बच्चा जब बाहर आए जाए तेरे फरिश्ते उसकी हिफाजत करे, तेरे लोग खुद उसकी हिफाजत करे। तेरा शुक्र अदा करते हैं एकदम रिचर्ड, रमा, सोनू, सलमान, सैमुअल और सैमसन के लिए बाप, दाऊद शाहीन के लिए बाप हम तेरी बरकत चाहते हैं। यस लॉर्ड हालेलुया, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ इस्ताज करते हैं। बच्चों के लिए हम तेरी सलामती चाहते हैं। इसी तौर से बाप दाऊद जो पूरे ग्रुप जो यहाँ पर शामिल है, एक एक को बाप हम बड़े के लोग मुझ पाते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया दाऊद माया के लिए, सनिया के लिए, दाऊद सराफीन के लिए, शीना के लिए, दाऊद सोनिया के लिए, यूनस एंड फैमिली के लिए, दाऊद निदा के लिए, किंजा के लिए, अब आप सिस्टर महिंदर के लिए, अब आप सिस्टर शाहीन के लिए, अब आप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस लॉर्ड हालेलुया, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ इस्ताज करते हैं। दाऊद खास तौर पर अब आप निदा के लिए दाऊद तेरा शुक्र अदा करते हैं। दाऊद निदा के साथ हो, उसकी फैमिली के साथ हो, उसके बच्चों के साथ हो, तो उनको बड़ी बरकत दे, दाऊद अपने जलाल के लिए दाऊद इस फैमिली को मजबूत कर और दाऊद गहरे तौर पर ले और इस्तेमाल कर। यस लॉर्ड हालेलुया, यस माय लॉर्ड तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये सब कुछ अब आप हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। अब हमारे खुदाम का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदाम यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। God bless you too दी। आमीन आमीन जी। मैंने आज खुदावन के आवाज को सुना है कि खुदावन ने जो फर्मा बरदारी की रूह है वो हमारे अंदर डेली है, जो कि खुदावन यीशु मसीह की रूह है। खुदावन यीशु मसीह की जो रूह जब हमारे अंदर आ जाती है तो वो हमने आपको सबको शायद याद हो जब हमने पाखरू के बपतिस्मे के बारे में सीखा था, तो उसमें हमने सीखा था कि खुदावन यीशु मसीह की रूह फर्मा बरदारी की रूह है। तो आज खुदावन ने हमें वो जो दी है, जहाँ कहीं भी हम हमारी जिंदगी में, जैसा कि दीदी ने हमारे सिखाया कि उस वक्त खास जो फर्मा बरदारी थी जो कि खुदावन यीशु मसीह ने दिखाई है ना अपने बाप की, तो इसी तरह हमें भी वो फर्मा बरदारी जो है अपने बाप के साथ दिखानी है, करना है। उसके जब फर्मा बरदारी आ जाएगी तो हर एक चीज ही, जैसे कह लें, जो भी थी वो निकलती जाएगी। तो खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। हालेलुया। और मैंने देखा है कि जब अरसलान के लिए सूर्य प्रेयर कर रही थी तो उसके हाथ को मैंने देखा है, जो राइट है जो हाथ है वो उसका देखा है। ऐसे मुझे ऐसे वो वाज़िया नजर नहीं आया, लेकिन मैंने ऐसे देखा कि जैसे उसकी जो उंगली है, ये जो चीची के साथ होती है, जो उसमें अंगूठी जो है वो डाली जा रही है, या रिंग या अंगूठी। तो वो जब डाला गया है, डाली गई है, तो मैंने देखा कि ऐसे जैसे रोशनी जैसी उसके बाजू में से ऊपर जा रही है। तो मुझे अभी इसका मीनिंग नहीं समझ आया, लेकिन मैंने ये देखा है कि उसके जो हाथ है, उंगलियां हैं, उसमें अंगूठी जो है डाली है। तो खुदा उनका मैं शुक्र करती हूँ
कि खुदावंद इसके मीनिंग जो है वो भी हमें बताएगा या समझाएगा। और मैंने शीना का देखा है कि शीना के ऊपर एक ऑयल है जो प्योर, जैसे कह लें कि जैसे पानी की तरह जो होता है, उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लाइक, है ना। और उसमें जैसे हमने सीखा था, मेरा ख्याल है गिनती की किताब या खरूज की किताब में, कि जो मसाले थे वो उससे ऑयल बनाया जाता था, जिस तरह वो, तो वो ऑयल जो है उसके अंदर जैसे जो होती हैं बूटियां, जड़ी बूटियां जैसी, वो मैंने देखी हैं। और वो उसके ऊपर अंडेला चारा, और उसके बाद मैंने देखा है कि जैसे हम श्रेया को शायद याद हो कि हम टखनों तक पानी में ये डूबी हुई है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि कलाम में लिखा हुआ कि टखनों तक पानी नहीं, कमर तक नहीं, हमें उसमें डूबना है, पाक रू के। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने देखा है कि ये पानी में ऐसे जैसे डूबी हुई है, यानी पाखरू के उसमें, और इसके ऊपर ऑयल जो है वो डाला जा रहा है। तो खुदा का शुक्र हो कि खुदा इसको अपने पाखरू से भर रहा है और मसा कर रहा है ऑयल से। तो खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो कि खुदावंद जो है इस जगह पे हमारे साथ मौजूद है, और खुदावंद ने हमें संभाला हुआ है। खुदावंद जो है, जो उसकी मसा है, उसकी जो ब्लेसिंग है, जो वो हमें दे रहा है, तो हम उसकी कवरिंग में हैं, उसके पाक खून की कवरिंग में हैं। और खुदावंद जो है इस पूरे ग्रुप को भर रहा है, और फर्माबरदारी की रूह जो है हमने अता की है। तो इसलिए खुदावंद का मैं शुक्र करती हूँ। अगर और भी किसी के साथ खुदावंद ने कोई कलाम किया है, कोई तसल्ली दी है, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। जी। जी आंटी, मैं शेयर करना चाहूंगी। प्रेज द लॉर्ड। Praise और God. खुदा उनका बहुत शुक्र है कि उन्होंने आपके वसीले से मुझे कलाम मैसेज दिया, और मैं बड़ी खुश हूँ कि आपने मुझे देखा कि स्पिरिचुअली मैं इतना अब आगे बढ़ रही हूँ। तो आपको यही, कल मैंने आपसे एक इशू शेयर ही किया था कि ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है। तो देखिए, पहले मेरी प्रॉब्लम्स होती थी ना, तो मैं बड़ा वरीड हो जाती थी। लेकिन हमने जब से ये ब्लड की सीरीज ज्वाइन की है ना, मुझे ना एक बड़ी तसल्ली सी रहती है, और मैं अब किसी चीज के लिए भी फिक्रमंद ही नहीं होती, और बहुत रिलैक्स में रहती हूँ। और इतना जैसे आप एनी टाइम रूहानी तौर पर आप बड़ा जिस्म हल्का हल्का फील होना, और ऐसे जैसे इंसान उड़ता नहीं है, इस तरह की फीलिंग अब मेरे साथ होती है, और मैं बड़ा खुश रहती हूँ अब। लाइक कोई परेशान कुछ हो भी तो मैं कहती नहीं, ठीक है, खुदा इन मसलों से बहुत बड़ा है, वो तो सब कुछ कर सकता है। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। मैं अभी आज ही बात नाइला से कर रही थी, आप एक कलाम दुआ से पहले मैंने कहा, नाइला मैं परेशान नहीं होती, मुझे एक बड़ी तसल्ली मिल गई है जो कि मुझे पहले कभी नहीं मिली। लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जब मैं इतनी सुकून के साथ रहती हूँ एनी टाइम, और कोई वरीनेस नहीं है। अगर कुछ हो भी तो मुझे फिक्र ही नहीं होती, मुझे पता है वो है, उसको मेरे से ज्यादा मेरी फिक्र है। और खुदा ने मुझे ब्लेस भी किया है। तो अब मैं ग्रुप मेंबर्स को मैं एक बात और भी बताना चाहूंगी, जैसे कि आज वेडनेसडे, लास्ट वेडनेसडे लाइट चली गई थी, मेरी गवाही रह गई थी। तो इस ग्रुप में जब हम होली स्पिरिट के लिए प्रे कर रहे हैं, तो खुदावन का बड़ा शुक्र है कि उसने मुझे रूहानी आंखें दी, और मैंने खुदावन से रिक्वेस्ट की कि मैं आपको मिलना चाहती हूँ। तो खुदा अपने बंदा पास्टर नईम प्रसाद के वसीले उनके रूप में मुझे मिले, तो मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। और आप सबको भी मैं ये मैसेज एक छोटा सा दूंगी कि इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं, बट जो मुझे लगता है कि घंटों की दुआएं या ऊंची ऊंची लंबी लंबी दुआएं असर नहीं करती, आपकी तलब होनी चाहिए। जब आपकी तलब हो तो आपके दो अल्फाज भी खुदा को आपके पास ले आते हैं। और जब मैंने खुदा की मेरी लाइफ में विजिटेशन थी, तो मैंने कोई प्रे नहीं की थी, मैं जस्ट लेटी हुई थी, और मैंने सिर्फ इतना कहा कि खुदा मुझे तुझे मिलना है, बस मैंने ये 3 लफ्ज बोले और मैं सो गई। और मैंने रोया, मैं खुदा को मिली, और उन्होंने मुझे प्यार किया। तो सिर्फ क्या, इंसान के अंदर तलब होनी चाहिए, तो खुदा सबको सब कुछ दे देता है। और इस ग्रुप में मुझे ऑलमोस्ट अब 3रा वीक है, तो खुदा ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है, रूहानी तौर पे बहुत ज्यादा बरकतें मुझे मिली हैं। Hallelujah. Praise God. Praise God. आमीन। Hallelujah. God bless you, Shina.
खुदावंद आपको गॉड और ज्यादा बरकत दे और आपकी रूहानी आंखों को खोले और खुदावंद आपके साथ ख्वाबों में रोया में और ज्यादा कलाम करे और आमीन। खुदावंद ने आपको मसा किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। आपका भी शुक्रिया। जी और मैं आपके प्रे करती हूँ, मैं दिन में जितनी बार भी प्रे करती हूँ आपकी और आंटी सुरैया के लिए और ग्रुप के सारे मेंबर्स के लिए मैं प्रे करती हूँ। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू। थैंक जी यू। सोनिया, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी। हाँ जी। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਸਟ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। प्रेज गॉड। हालेलुया। हाँ जी, मैं सोनिया जड़ा मतलब खुदावंद यसू मसीह दी कबर देखी है, जो मैनू इस टाइम थोड़ा जिहा समझ लगी है कि खुदावंद यसू मसीह दी जी उठण वाली जिहड़ी कुदरत है ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜੇ, ਹਨਾ, ਜਿਸਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਸਾਂ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਨਜਾਤ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ, ਕਬਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਤਹ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸਮਝ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰਈਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੋ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ खुदावंद का शुक्र होए। जी, किसी और ने कुछ कोई देखा है या कुछ कहना चाहता है कलाम के बारे में कि खुदावंद ने आज मेरे साथ बात की, तो या तसल्ली मिली तो आप कह सकते हैं। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ हाँ जी, जी, प्रेज मैंने द लॉर्ड। तसल्ली मिली आज इस कलाम दे वसीले में, ते मैं प्रेज खुदावंद दा गॉड, शुक्र करदी हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है अंजना, आपको रोज ही खुदावंद तसल्ली देता है, मैं बड़ी खुश होती हूँ। प्रेज गॉड। जी जी, किसी और ने कुछ कहना नहीं तो हम मीटिंग को जी, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी भाभी जी, हाँ जी भाभी, कुछ तुसी कहना है भाभी जी? नहीं नहीं चाची नाल गल कर। ओके ओके ओके, चलो जी ठीक है फिर, गॉड ब्लेस यू।